السلام علیکم دوستو، سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ چالاک حسن صباح محمد حامد الغزالی کے زندہ ہونے کا پتہ چلا لیتا ہے، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات تورنا خاتون سے ہوتی ہے، جو کہ اپنے گھر میں موجود روتی ہوئی سپاہی سانجار کی باتیں یاد کرتی جاتی ہیں اور ساتھ میں روتی بھی جاتی ہیں۔ تورنا خاتون سانجار کے دیے ہوئے پھول کو دیکھتی جاتی ہیں اور کہتی ہیں، تم زندہ رہو چاہے ہماری محبت مر جائے، تم میرے سلگتے ہوئے دل کی آخری امید ہو، میری اندر کی خاموشی میں میری آرزو بنو اور میری رہنمائی کرو۔ میں کیا محسوس کروں میں نہیں جانتی کہ اس محبت کو کیسے بھولوں، تم میری رہنمائی کرو۔ پھر دوستو، دوسری جانب سپاہی سانجار دکھایا جاتا ہے، جو کہ تورنا خاتون کا دیا ہوا نیلا رومال پکڑ کر ان کی باتیں یاد کر رہا ہوتا ہے اور غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ سپاہی سانجار تورنا خاتون کے دیے ہوئے تحفے کو لوٹانے پر بڑا پریشان ہوتا ہے۔ پھر سانجار تورنا خاتون کا رومال اپنی تلوار کی دستی پر باندھ دیتا ہے۔ اتنے میں سپاہی ارسلان تاش بھی یہاں پر پہنچ جاتا ہے، جو کہ سانجار کی کیفیت جان لیتا ہے اور فوراً اس کے پاس آ کر اسے تسلی دیتا ہے، جبکہ سپاہی سانجار کہتا ہے، میں نے اس محبت کو اپنے دل میں دفن کر دیا ہے، کم از کم میں ان کی یادوں سے تو وفادار ہوں گا۔ اتنے میں دوستو بہرام فدائی بھی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، ایک اچھی خبر ہے بہادرو، وقت آ گیا ہے، تم دائی اعلیٰ کے حضور پیش ہوگے۔ سانجار یہ سن کر بڑا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا ابھی؟ بہرام کہتا ہے، اس میں بھی تھوڑا وقت ہے، ہم فجر سے پہلے وہاں ہوں گے، تم تیار ہو جاؤ، اس نئے دن کے ساتھ تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ سانجار سپاہی اپنا سر خم کرتا ہے اور بہرام مسکراتا ہوا یہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر دوستو بہرام کے جانے کے بعد سپاہی سانجار ارسلان تاش سے کہتا ہے، کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر فوراً بوسکوش کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ ارسلان تاش کہ نظام الملک کو فوراً کہے کہ ہم صبح سویرے ان کے ٹھکانے پر ہوں گے اور وہ حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ارسلان تاش مسکراتا ہے اور سانجار کے حکم پر فوراً بوسکوش کے پاس روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ پھر دوستو سانجار اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ پھر دوستو دوسری جانب اصفہان محل دکھایا جاتا ہے، جہاں آدھی رات کو حاجی نظام الملک اپنے سلطان کو اہم خبر دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور سلطان ملک شاہ تیزی سے محل کے صحن میں آتے ہیں، جہاں حاجی نظام الملک پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے حاجی؟ جو میں نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ حاجی نظام الملک کہتے ہیں، میرے سلطان، بدقسمتی سے وہ درست ہے، خیام کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ غزالی اور نہ ہی خیام کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، یہ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، انہیں شک تھا کہ غزالی وہاں ہے۔ پھر دوستو ملک تاپار کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ غزالی زندہ ہیں انہوں نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہے میرے سلطان۔ حاجی کہتے ہیں، اب وہ جانتے ہیں کہ غزالی زندہ ہیں اور اب مقدس ایمانتیں اور سانجار کی جان خطرے میں ہیں۔ اتنے میں دوستو ایک سپاہی حاجب کمچ کو ایک پیغام دیتا ہے اور فوراً یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سلطان ملک شاہ غصے میں کہتے ہیں، یہ کیسی لاپرواہی ہے حاجی، تم ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہو؟ یہ مسئلہ بہت سارے سر قلم کر دے گا، یہ جان لو۔ اتنے میں دوستو حاجب کمچ کہتے ہیں، میرے سلطان، ہمارے خصوصی سپاہیوں میں سے ایک جوان خبر لایا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، آنے دو اسے۔ حاجب کمچ پھر اشارہ کرتے ہیں اور محل کے سپاہی دروازہ کھولتے ہیں۔ پھر سانجار کا خصوصی سپاہی بوسکوش فوراً اپنے سلطان کے پاس آتا ہے، جبکہ سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، کیا خبر ہے بوسکوش؟ بوسکوش کہتا ہے، میرے سلطان، سانجار کو ان کے ٹھکانے پر بھیجا جا رہا ہے، وہ دائی اعلیٰ سے ذاتی طور پر ملے گا۔ حاجی کہتے ہیں، میرے سلطان، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ سلطان کی اجازت ملنے کے بعد حاجی نظام الملک بوسکوش سے کہتے ہیں، وہ یہ جان چکے ہیں کہ غزالی زندہ ہیں، اسی لیے وہ اپنے ٹھکانے پر سانجار کو مار دیں گے۔ بوسکوش، فوراً اپنے بہادروں کو تیار کرو۔ بوسکوش اپنا سر خم کرتا ہے اور فوراً یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سلطان ملک شاہ پھر کہتے ہیں، تابار، فوراً
अपने सिपाहियों को तैयार करो। इनकी किछाड़ को तबाह करके मुकद्दस इमानतों और सांजार को वापस लाए बगैर महल में ना लौटना। मलक तापार अपना सर खम करता है और फिर दोस्तों सुल्तान पीछे मुड़कर कहते हैं, अगर सांजार या मुकद्दस इमानतों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो तुम भी इसकी कीमत अदा करोगे। निजामुल मुल्क फौरी तौर पर इस आग के मसले को हल करो। ये कहकर सुल्तान मलक शाह यहाँ से चले जाते हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क ये सुनकर बड़े परेशान होते हैं। फिर दोस्तों अगली सुबह बातनी सरबराह अब्दुल मालिक दिखाया जाता है, जो कि जंगल में किसी का इंतजार कर रहा होता है। इतने में हसन सब्बाह आता है और दूर से ही आवाज लगाता है, दाइये आला हजरत। अब्दुल मालिक कहता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो हसन? हसन सब्बाह फौरन अपना घोड़ा दरख्त के साथ बांधकर दाइये आला के पास आता है और कहता है, गजाली वो मरा नहीं है। अब्दुल मालिक ये सुनकर दंग रह जाता है और परेशानी से कहता है, वो कैसे? तुमने तो कहा था कि तुमने तीर इसके दिल में बेवस्त होता हुआ देखा था। हसन सब्बाह कहता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे शक है। अब्दुल मालिक कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? हसन सब्बाह कहता है, मैंने उमर खयाम के घर को आग लगा दी है। मैंने जलते हुए घर से उमर खयाम और गजाली को निकलते हुए देखा है। अब्दुल मालिक कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस घर से दूर रहोगे। तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है हसन। हसन सब्बाह कहता है, दाइये आला हजरत, अगर मैंने एहतियात का दामन छोड़ दिया होता तो हम इस वक्त बहुत बड़े जाल में फंस चुके होते। मैंने जो कुछ भी किया है वो हमारे मकसद के लिए जरूरी था। अब्दुल मालिक कहता है, और मैं क्या लापरवाह और नाअहल हूँ? हसन सब्बाह कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस्फहान में था। उस दौरान वहाँ क्या हुआ था मैंने अपने बहुत करीब से देखा है। बस इतनी सी बात है दाइये आला हजरत। इमाम गजाली किसी जख्मी शख्स की तरह भी नजर नहीं आता था। आग से भागते हुए जरा भी नहीं लड़खड़ाया था। गजाली को तीर मारने वाला आदमी वो हमारे दरमियान जासूस है। हमें बहराम दाई की तरफ फौरन खबर भेजने की जरूरत है। अब्दुल मालिक कहता है, उन्होंने मेरे पास कमर बंद की तकरीब के लिए आना था। जल्द ही वो हमारे ठिकाने पर पहुंच जाएंगे और जब वो आएंगे तो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। हसन सब्बाह अपना सर खम करता है और फिर दोनों ही फौरन यहाँ से चल देते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बहराम फिदाई दिखाया जाता है, जो कि रुस्तम और सांजार के हमरा अपने खुफिया मकाम की तरफ जा रहा होता है। और दोस्तों इसी दौरान कमांडर योरगोस भी इनके ताकुब में लगा होता है और योरगोस इन्हें देखकर अपने सिपाही जैनून से कहता है, सबसे आगे बहराम है और बहराम ही हमें वहाँ लेकर जाएगा जहाँ मुकद्दस इमानतें रखी गई हैं। फिर दोस्तों इस्फहान में बोरचिक खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपने बाजार में मौजूद जासूस के पास आती हैं और इस दौरान फिरदौस खादमा भी इसके ताकुब में लगी होती है। दुकानदार इस दौरान एक कपड़े में लिपटे हुए कागज को बोरचिक को थमा देता है और कहता है, ये ले, ये आपके लिए है। बोरचिक कहती है, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। जासूस अपना सर हिलाता है, जबकि बोरचिक कहती है, ये लो, ये 2 दिनार तुम्हारा हक है, हमेशा सलामत रहो। फिर दोस्तों बोरचिक मुस्कुराती हुई महल की तरफ चल देती है और रास्ते में एक जगह रुक कर कपड़े में से कागज निकालती है और इस पर एक नक्शा बना होता है, जिसे देखकर बोरचिक खातून बड़ी खुश हो जाती है। जबकि दूर खड़ी फिरदौस खादमा ये देखकर मुस्कुराती है और जासूस दुकानदार ये सब करने के बाद बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसने एलचन खातून को एक जाल में फंसा दिया होता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि तफ्तीश करने के लिए उमर खयाम के घर आते हैं और इनके साथ उमर खयाम और चंद फौजी भी मौजूद होते हैं, जो कि हर तरफ घर में फिरकर चारों अतराफ का जायजा ले रहे होते हैं। हाजी निजामुल मुल्क इस दौरान घर के बाहर आते हैं और बड़े गौर से आगे पीछे देखते हैं। इसी दौरान खिड़की के पास दीवार पर अचानक हाजी की नजर पड़ती है और हाजी निजामुल मुल्क
फौरन अपना हंजर निकाल कर दीवार में घुसेड़ कर इसकी मदद से तीर की नोक निकालते हैं और उमर खयाम भी ये देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं। हाजी फौरन आगे पीछे देखते हैं और बड़े हैरान होते हैं, जबकि उमर खयाम कहते हैं, आपने इस तीर में क्या देखा है हाजी? हाजी निजामुल मुल्क तीर की नोक आगे करते हैं और कहते हैं, उन्होंने इस तीर के सिरे पर आग लगाकर घर को जलाया था, लेकिन ये इन तमाम शोलों के बावजूद भी ये नहीं पिघला, क्योंकि ये सल्जूक तीर है और ये महल के किसी फर्द का है। उमर खयाम ये सुनकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, हाजी सिर्फ एक ही शख्स है जो पता लगा सकता है कि ये तीर महल में किसका है। हाजी अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक कहा तुमने, इस फैजारी लोहे और फौलाद के बारे में इस फैजारी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है, वही हमें इस दौड़ का सेरा दिखाएगा। उमर खयाम इस सारी सूरत हाल पर शदीद परेशान होते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहां तैरकन खातून गमले में फूल बदल रही होती हैं और इसी दौरान फिरदौस हादमा कमरे में दाखिल होती है और मुस्कुराती हुई कहती है, एक अच्छी खबर है बेगम साहिबा, उन्होंने दाना निगल लिया है और अब वो हमारी मुट्ठी में है। तैरकन खातून एक कांटों वाला फूल उठाती हैं और कहती हैं, मेरे दिमाग की हम आहंगी को खराब करने वाला गुलाब का सर काटने का वक्त आ गया है फिरदौस। दोस्तों फिरदौस ये सुनकर मुस्कुराती है, जबकि तैरकन खातून कैंची से फूल की एक शाख काट देती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब एलचन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि बोरचिक खातून के इंतजार में बेचैन हो रही होती हैं और इसी दौरान बोरचिक कमरे में दाखिल होती है और खुशी से मुस्कुराती हुई अपनी बेगम साहिबा के पास आती है, जबकि दोस्तों एलचन खातून कहती हैं, तुम कहाँ थी बोरचिक? मैं परेशान हो गई थी। बोरचिक खातून कहती हैं, मैंने बाजार से चंद कपड़े खरीदे हैं ताकि किसी को भी मुझ पर शक ना हो सके, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई थी। एलचन खातून कहती हैं, क्या हुआ? क्या कोई अच्छी खबर है? बोरचिक कहती हैं, जी बेगम साहिबा। एलचन खातून मुस्कुराती हैं, जबकि बोरचिक एक कपड़े में लिपटा हुआ कागज निकालती हैं और इसे एलचन खातून को थमा देती हैं और फिर दोस्तों एलचन खातून इस कागज को खोलती हैं और दोस्तों इसमें जिंदान का नक्शा होता है, जिसे देखकर एलचन खातून फौरन कहती हैं, ये तो मेरे अबाऊ अजदाद सुलेमान शाह की मोहर है, हमें वो पिंजरा मिल गया है जहां मेरे भाई किलज अरसलान को कैद किया गया है। एलचन खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बोरचिक हमें ये मिल गया है, हमें मेरे भाई मिल गए हैं, अब इंतजार खत्म हुआ, हमने अपना मंसूबा पूरा कर लिया है। बोरचिक कहती हैं, अगर इन्हें पता चल गया तो फिर सुल्तान मलक शाह कभी भी भाइयों का खून बहाने की इजाजत नहीं देंगे। एलचन खातून कहती हैं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती, मलक शाह का असल चेहरा हम भाइयों को बचाने के लिए देखेंगे, चलो अब हमें फौरन चलना होगा। फिर दोस्तों दोनों ही खवातीन यहाँ से चली जाती हैं, जबकि तैरकन खातून ये सब देखने के बाद अपने सुल्तान मलक शाह के पास आती हैं और कहती हैं, मेरे सुल्तान आपका गुस्सा जमीनों आसमान को हिला देता है, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको गुस्सा दिलाया है? सुल्तान मलक शाह कहते हैं, शायद मेरे और मेरे भाई के दरमियान तनाजा डालने वाला कोई तीसरा आदमी है और अगर मैं इसे बेनकाब ना कर सका तो हम इस फसाद से कभी जान नहीं छुड़वा सकेंगे। एलचन खातून कहती हैं, आपकी अच्छी नीयत के बारे में पूरी दुनिया जानती है, काश के आपके आस पास वालों की भी नीयत आप जैसी होती। सुल्तान ये सुनकर फौरन पीछे मुड़ते हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं, मैंने इस मुश्किल वक्त में आपको परेशान किया है, लेकिन मुझे बहुत जरूरी मालूमात आपको फराहम करनी है। सुल्तान कहते हैं, वो मालूमात क्या हैं? फिर दोस्तों तैरकन खातून तफसील से सुल्तान मलक शाह को एलचन खातून के मुतल्लिक बताती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार और अरसलान ताश दिखाए जाते हैं, जो कि कामयाबी से बातनियों की किछाड़ में पहुंच जाते हैं और बहराम
अपना निकाब उतार कर मुस्कुराता हुआ कहता है, तुम यहाँ इंतजार करो बहादुरों, हम जाकर दाइये आला हजरत को खबर देते हैं। सांजार अपना सर खम करता है, जबकि रुस्तम फिदाई और दाई बहराम यहाँ से चले जाते हैं। सिपाही सांजार फिर अरसलान ताश से कहता है, निजामुल मुल्क को अब तक खबर पहुँच गई होगी, इंशाअल्लाह वो वक्त पर पहुँच जाएंगे। अरसलान ताश कहता है, इंशाअल्लाह मेरे भाई। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक फौजी लश्कर दिखाया जाता है, जो कि कीनिक हसूसी फौजियों और सल्जूक फौज के हमरा बातनी हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं और इनकी क़ियादत बोस्कोश सिपाही और मलक तापार खुद कर रहे होते हैं। बोस्कोश सिपाही और मलक तापार अपने घोड़े हवा की तरह दौड़ाते जाते हैं ताकि बर वक्त वो बातनी की छाड़ में पहुंच सके। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब एल्चन खातून और बोर्चिक खातून दिखाई जाती हैं, जो कि जंगल में एक खुफिया मकाम की तरफ आती हैं और आगे इनका दुकानदार जासूस भी इनके इस्तकबाल को खड़ा होता है। एल्चन खातून इस जासूस से कहती हैं, जहां मेरे भाई को कैद किया गया है, क्या तुमने वो जगह देखी है? जासूस कहता है, हाँ मैंने देखी है। एल्चन खातून, वहाँ पर कुछ सिपाही दरवाजे की हिफाजत करते हैं। एल्चन खातून कहती हैं, दाखिल होने के लिए हमेशा कोई ना कोई जगह होती है, भाई जान को छुड़वाए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब यहाँ से कोई वापसी का रास्ता नहीं है, तुम भी हमारे साथ आओगे। एल्चन खातून अपने गद्दार जासूस को लेती हैं और यहाँ से जिंदान की तरफ चल पड़ती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब रसदगाह यानी कि इल्मे फल्कियात के मुताले की जगह दिखाई जाती है, जहाँ हाजी निजामुल मुल्क खास आदमी से मिलने आते हैं और सलाम करते हैं। इस फैजारी हाजी के सलाम का जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम हाजी हजरत। फिर दोस्तों हाजी निजामुल मुल्क एक तीर की नोक इस फैजारी को देते हैं और कहते हैं, महल में हर ओहदेदार के तीरों को हमने अलग अलग इलामात लगाई थी और कोई भी इन इलामात के बारे में नहीं जानता है, वो आंखों से देखे नहीं जा सकते। और जब इस तीर की नोक पर इलामत को जाया किए बगैर इसे साफ करने की बात है, तो आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। इस फैजारी इस दौरान गौर से तीर की नोक को देखते हैं और फिर कहते हैं, ऐसी पोशीदा इलामत को देखने के लिए अदसे और रोशनी की जरूरत है। तीर के साफ होने के बाद मैं ये आला तैयार करूंगा। हाजी कहते हैं, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। इस तीर की नोक पर मौजूद इलामत हमें बताएगी कि ये आग किसने लगाई थी। हमारे दरमियान मौजूद गद्दार को जाहिर करना अब आप पर मुनहसर है। इस फैजारी कहते हैं, इस जले हुए तीर को साफ करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आप फिक्र ना करें। हाजी निजामुल मुल्क फिर इजाजत लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जबकि उस्ताद इस फैजारी एक थाल में ये तीर रखते हैं और फिर इसमें एक महलूल डालते हैं ताकि इस पर लगा हुआ आग का कचरा साफ हो सके और इस फैजारी गद्दार को बेनिकाब कर सके। और दोस्तों यहीं हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।